نون لیگ کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ آج دفتر میں آخری دن ہے، پھر روانہ ہو جاؤں گا۔ اپنے حق میں اور اپنے خلاف لکھنے والے تمام صحافیوں کا شکر گزار ہوں۔ معاشرے میں صحافت کا اہم کردار ہے، عوام صحافیوں کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ غیبت، چغلی اور بہتان تراشی سے صحافیوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کہا کہ تنقید برائے تنقید نہیں، برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ مریم اورنگزیب سمیت دیگر خواتین کا لندن میں گھیراؤ کیا گیا۔ یہاں مظاہروں کا 4 سال میں کیا فائدہ ہوا؟ مظاہرہ کرنا ہے تو پاکستان جا کر کریں۔ احتساب کی لاٹھی صرف سیاست دانوں پر چلی ہے، ہر تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ ہمارے حوالے سے ڈیلز کی بے بنیاد باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر ڈیل کرتے تو نواز شریف کو جیلیں نہ کاٹنا پڑتی۔ مجھے لانڈھی جیل میں رکھا گیا، نواز شریف کو جلا وطن کیا گیا۔ نواز شریف نے کبھی کارکنوں کو نہیں کہا کہ حساس تنصیبات پر حملہ کر دو۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ کو لامتناہی توسیع کی پیشکش کی۔ ایک گروہ نے سیاست بچانے کے لیے 9 مئی جیسے واقعات سے ملک کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مزید کہا کہ ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچائی۔ نواز شریف کو اقتدار سے نکال کر ترقی کا سفر روکا گیا۔ نواز شریف 12 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ ترقی کا سفر جہاں سے ختم ہوا تھا وہیں سے شروع ہوگا۔ نواز شریف کے دوست ممالک سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یہ تعلقات قرضہ لینے کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے لیے کام آئیں گے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ اگر ریاست بچ گئی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی، قطعاً مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے۔ ایک محترم خاتون بہن نے مجھے یہ کہا، اب آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے 30 سال سے آنکھ کا تارا ہیں۔ اس کا جو اخباروں میں اگلے دن یا ٹیلی ویژن پر جو آیا، اس کا مجھے دکھ ہوا کہ بات وہی کرنی چاہیے جو کہی گئی ہے۔ آپ اپنے پاس سے بات کریں گے تو یہ صحافت نہیں ہے، یہ پر زرد صحافت۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں آنکھ کا تارا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں تو مجھے کون سے لڈو مل گئے ان 3 سالوں میں؟ تو میاں صاحب کو گرفتار کیا گیا، میں بھی گرفتار ہوا۔ ہم نے تو 9 مئی کو جا کے اپنا جی ایچ کیو پہ ہم نے نہیں کروائے، نہ کسی کو کہا، نہ کسی کو اس کی ترغیب دی۔ انہوں نے ہمیشہ افواج پاکستان شہیدوں اور غازیوں کے لیے دعا کی، پاکستان کی جو ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران، نیازی اور نیب گٹھ جوڑ، وہ جو گٹھ جوڑ تھا اس نے پاکستان کی کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ صرف نیب جو تھا، حزب مخالف جو سیاستدان تھے جو اپوز کرتے تھے اس حکومت کو، یہ ان کے خلاف تھا۔ لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ اس دور میں، میرے دور میں، کوئی ایک میں نے اپنا ایسی کاوش کی ہو کہ میں کو نیب کو میں نے استعمال کیا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ احتساب وہ ہے جو کہ سامنے صاف نظر آتا ہو۔ کیا یہ احتساب ہے؟ احتساب کی بات کریں، احتساب کا سب سے زیادہ نشانہ 75 سالوں میں صرف اور صرف سیاستدان بنے ہیں۔ اور احتساب کا اگر بات کرنی تو آئیے بیٹھیں، ایک ڈائیلاگ کریں اکراس دا بورڈ۔ ناظرین، نواز شریف کو دل کے عارضے کی علامات برقرار ہیں۔ شوگر اور دیگر امراض کی وجہ سے پاکستان اور لندن میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کی اینجیوپلاسٹی نومبر 2022 میں کی گئی، سٹنٹ بھی ڈالے گئے۔ ماضی میں بائی پاس اور اینجیوپلاسٹی کی وجہ سے مسلسل چیک اپ کیا جانا بہت ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے۔ میڈیکل رپورٹ برطانیہ کے رائل برمنٹن اسپتال کے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ پروفیسر کارلو ڈی ماریو کی جانب سے جاری کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق نواز شریف کو انجائنا کی علامات اور کرونا کے باعث پاکستان جانے سے روکا گیا تھا۔ برطانیہ کے رائل برمپٹن ہسپتال کے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ پروفیسر کارلو ڈی ماریو کی جانب سے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جاری کی گئی۔ برطانوی معالج کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں داخل کرا دی گئی۔ یہ رپورٹ نواز شریف کے وطن آنے سے تقریباً 2 ہفتے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں داخل کرائی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو ابھی بھی دل کے عارضے کی علامات ہیں۔ نواز شریف کو شوگر اور دیگر امراض کی وجہ سے پاکستان اور لندن میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نواز شریف کی ماضی میں ہونے والی بائی پاس سرجری اور اینجیوپلاسٹی کی وجہ سے ان کا مسلسل چیک اپ ہوتا رہا۔ نواز شریف کی پہلے اینٹی اینجنل تھراپی کی بہتری کے لیے علاج کیا گیا اور پھر انہیں انجائنا کی علامات اور کورونا وبا کی وجہ سے پاکستان جانے سے روک دیا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب نواز شریف میں مرض کی علامات بڑھ گئیں تو ان کی اینجیوپلاسٹی دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق نواز شریف کی اینجیوپلاسٹی نومبر 2022 میں کی گئی اور اس دوران نواز شریف کو سٹنٹ بھی ڈالے گئے۔ پارلیمان نے نگران حکومت کے اختیارات کیوں بڑھائے؟ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس کی وجہ بتا دی ہے۔ کہتے ہیں کہ موجودہ نگران سیٹ اپ نے تقریباً 6 ماہ کے لیے حکومت چلانا تھی۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ آئیں، حاضری لگائیں اور گھر چلے جائیں۔
कोई वजह नहीं कि IMF से दूसरी किस्त ना मिले। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कहा, हिफाजती जमानत की दरख्वास्त वक्त आने पर देंगे। पाकिस्तान में सबको हिफाजती जमानतें मिलती हैं, नवाज शरीफ को भी मिल जाएगी। वकला जो है वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करेंगे। किसको नहीं मिली इस मुल्क में? मुझे 2 साल 4 साल में पिछले बता दें, किसी ने प्रोटेक्टिव बेल मांगी तो नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, और वो कह रहे हैं कि हम जनवरी के एंड में करवा देंगे, तो कोई वजह नहीं है। एंड बाई एग्रीमेंट के तहत जब हमने हुकूमत छोड़ी थी उस वक्त तक हर चीज इन ऑर्डर थी, और जो हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी उस क्वार्टर के लिए उस वक्त तक वो सारी पूरी, और मैं नहीं समझता कोई वजह जेन्युइन जिसकी वजह से जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट की दूसरा रिव्यू है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन एक्ट 27 में सेक्शन 230 उनका जो है डे टू डे जो होता था वो चेंज हो चुका है। वो पार्लियामेंट ने जाने से पहले केयर टेकर हुकूमत के लिए चेंज कर दिया था, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो 6-7 महीने मुकम्मल नहीं हो सकता कि केयर टेकर से रोज आके हाजिरी लगाए और चली जाए। ये हुकूमत बायलैटरल, मल्टीलैटरल, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो ट्रांजेक्शन है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो नया लॉ आया था उसके हवाले से ट्रांजेक्शन, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ट्रांजेक्शन, ये सब काम कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मांडीवाला ने कहा कि हुकूमत में आने का कभी दावा नहीं किया, शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और गैर शफाफ इलेक्शन को कोई जमात नहीं मानेगी। कहा कि पाकिस्तान के हर हिस्से से इलेक्शन लड़ेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। निगरान हुकूमत को ज्यादा देर चलने देने की बात नहीं कर सकता। डॉलर अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक में स्मगल हो रहे थे और डॉलर की स्मगलिंग को रोकने से सूरत हाल बेहतर हुई। जिस किस्म की भी सियासत करे, इकोनॉमिक एजेंडा पाकिस्तान का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के सारे मसले हल हो सकते हैं। देखें, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है कि वो इलेक्शन में ना आए। ये अगर कोई तासुर दे रहा है कि हम चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब इलेक्शन ना लड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस किस्म की बात नहीं की। हम समझते हैं जी हर पार्टी का राइट है वो इलेक्शन लड़े, जिसका जो और जी इलेक्शन फेयर होने चाहिए। इट इज अबाउट टाइम कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन होने चाहिए। क्यों नहीं हो फेयर इलेक्शन? और मैं समझता हूं कि अगर फेयर इलेक्शंस होंगे उसी को आगे लेके आप चल सकते हैं ना। अगर अनफेयर इलेक्शंस होंगे तो उसको ना आवाम मानेगी ना पार्टियां मानेंगी, तो फायदा क्या है ऐसे इलेक्शन? मैं समझता हूं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ जीतती है तो इट्स फाइन। साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तयनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 से 3 रोज में केस के फैसले का इंदिया। PTI वकील शेर अफजल मरवत ने दलाइल दिए। साइफर केस का जेल ट्रायल शुरू हो गया है, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर अभी फैसला नहीं आया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीर तक तो नहीं, लेकिन 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे कि फैसला दे दें। मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि चेयरमैन PTI की अडियाला जेल मुंतकली पर एतराज़ है। ये तो PTI की दरख्वास्त पर ही फैसला हुआ। उधर सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत की 6 दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन और PTI वकला से 16 अक्टूबर को दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुतफरक दरखास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने अदालत को बताया कि साइफर केस का ट्रायल शुरू हो चुका है, मगर उनकी दरखास्त पर महफूज फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैं जल्दी कर देता हूँ, पीर को तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन में फैसला कर दूंगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और वकील शेर अफजल मरवत के दरमियान चेयरमैन PTI को अटक से अडेला मुंतकली से मुतल्लिक मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मीडिया में आ रहा है कि आप लोगों को चेयरमैन PTI की अटक से अडयाला जेल मुंतकली पर एतराज है। हालांकि अटक से अडयाला जेल मुंतकली की आप लोगों की ही दरखास्त मंजूर हुई है, फिर ये प्रेस में इतनी बहस क्यों चल रही है? वकील शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया कि हमारी तरफ से कोई ऑफिशियली बयान नहीं दिया गया। हम चाहते थे कि अडयाला जेल में B क्लास दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेटर क्लास होगी। लतीफ खोसा की दरखास्त पर नोटिस कर दिए हैं। उधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 6 जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास चिपरा ने नोटिस जारी करते हुए 16 अक्टूबर को दलाइल तलब कर लिए। तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर को भी रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत दी गई है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें 16 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन 16 अक्टूबर को थाना खन्ना में दर्ज 1 और बाराकाऊ में दर्ज 2 मुकदमात पर समाअत करेंगे। वज़ीर आला हाउस सिंध में एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। इजलास में शुरका को गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। कच्चे में पुलिस
और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग दी गई। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा GNN कराची हमीद सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद सोमरू, बताइएगा क्या हम फैसले हुए हैं आज के इजलास में? जी, वज़ीर आला हाउस कराची में सिंध एपेक्स कमेटी का जो इजलास है वो अब ख़त्म हुआ चाहता है और इस इजलास की जो सदारत है निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने की। इस इजलास में अस्करी हुकाम के अलावा IG पुलिस DG रेंजर्स ने भी शिरकत की। शुरका को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी और गिरफ्तारियों पर जो पेशरफ्त है उस हवाले से ब्रीफिंग दी गई और कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का जो मुश्तरका ऑपरेशन है उसकी हिकमत अमली और प्लान के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के जराये में मुलविस होने के शवाहिद भी एपेक्स कमेटी में पेश किए गए, जबकि FIA की डॉलर की जो गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ शहरों में किया गया है। ठीक है हमीद सोमरो, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे में मसरूफ रॉ के एजेंट रोहित शर्मा की यूट्यूबर आदिल राजा को लॉर्ड रामी रेंजर से राबिता करके ISI के खिलाफ साजिश करने का गठजोड़ सामने आ गया है। लॉर्ड रामी रेंजर्स एक सरकर्दा बरतानवी हिंदुस्तानी और रीजन का सियासतदान है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर भी है। लॉर्ड रामी रेंजर्स मुस्लिम पाकिस्तान और कश्मीर मुखालिफ बयानी की वजह से जाना जाता है और पाकिस्तान पर सिख फॉर जस्टिस और गुरप्तौन सिंह को फंड्स देने का इल्ज़ाम भी लगा चुका है। इसी बारे में बात करते हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइए इस बारे में ये क्या मामला है? जी, आदिल राजा और रोहित शर्मा की जो गुज़िश्ता रोज वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया के जरिए उसमें रोहित शर्मा आदिल राजा को लॉर्ड रामी रेंजर से मिलने और बात करने की हिदायत कर रहा था। लॉर्ड रामी रेंजर के बारे में मजीद तफसीलात अब सामने आ गई हैं। ये हिंदुस्तान और रीजन का भारतीय नजायज बाशिंदा है और जो बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर भी है, लेकिन ये पाकिस्तान मुखालिफ कश्मीर मुखालिफ बयानिए की वजह से और मुस्लिम मुखालिफ बयानिए की वजह से मशहूर है। ये पाकिस्तान पर न सिर्फ सिख फॉर जस्टिस और पनवंत सिंह को जो फंड देने का इल्जाम आयद करता रहा है, बल्कि उसके अलावा भी पाकिस्तान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से इसने बहुत पार्लियामेंट के अंदर बहुत तकरीरें की, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की कोशिश की, बारहा कोशिश की। लेकिन इसके बारे में एक और चीज ये सामने आई है लॉर्ड रामी रेंजर के बारे में कि लॉर्ड रामी रेंजर पर जो स्टैंडर्ड कमीशन है बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, उसने भी लॉर्ड रामी रेंजर के खिलाफ एक रिपोर्ट दे रखी है, एक डिग्री दे रखी है। जबकि ये भी बात सामने आई है कि लॉर्ड रामी रेंजर एक एंकर को खातून एंकर को उसने धक्का भी दिया और जिनसी हरासगी में भी मुलव्वस रहा है। जी, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद, इस बारे में आप बता रहे थे। सिंध की एपेक्स कमेटी का इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में शुरका को गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की गई। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका ऑपरेशन की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग भी दी गई। जानेंगे नुमाइंदा GNN हमीद सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमीद सोमरू, बताइएगा इजलास का अहवाल। जी, वज़ीर आला हाउस में कराची में सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वो हुआ है और इस इजलास में वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के अलावा सिपह सालार आर्मी चीफ ने भी इस हवाले से इस इजलास में शिरकत की, खुसूसी तौर पे उनकी ये शिरकत थी। और इस इजलास में वफाक की जो एपेक्स कमेटी है उसमें किए गए फैसले और जो सूबाई इदारे हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग जो है वो इस इजलास में दी गई। और इस इजलास में DG रेंजर्स और IG सिंध ने भी जो है सूबे की जो मजमूई अमन अमान की सूरत हाल है, उसके अलावा गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम गैर मुल्की हैं उनकी मुल्क बदली और गिरफ्तारियों पर ब्रीफिंग दी। और कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का जो मुश्तरका इस वक्त ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, उस हवाले से हिकमत अमली और प्लान के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के जराये में मुलविस होने के शवाहिद भी इस इजलास में पेश किए गए। उसके अलावा FIA की डॉलर की जो गैर कानूनी स्मगलिंग है उसके खिलाफ क्रैकडाउन जो मुख्तलिफ शहरों में किया गया है वो भी जो है वो उस पर ब्रीफिंग दी गई। उसके अलावा मुख्तलिफ महकमों की जो कारकर्दगी है उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए भी जो है वो सुपा सालार की तरफ से हिदायत जारी की गई। इस हवाले से जो इजलास है वो अहमियत का हामिल है क्योंकि सिंध की खास तौर पे जो इस वक्त
महकमा दाखिला की जो सूरत हाल है उस हवाले से जो अस्करी इदारों की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही है या रहनुमाई मुख्तलिफ महकमों की जा रही है उस पर भी जो है वो गाइडलाइन उनको दी गई। जी ठीक है हमीद सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया है। तर्जुमान पीटीआई कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाही की दलदल में धकेलने वाले मुजरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस खराफात का मजमुआ थी। कहा कि अपनी गुफ्तगू से कौमी मुजरिम ने रियासत और अवाम को फरेब के जाल में फंसाने की कोशिश की। इस कौमी मुजरिम ने 6% सालाना की शरह से तरक्की करती मईशत को ज़िबा कर दिया। गरीब और तनख्वाहदार तबके को 45% की तारीखी महंगाई तले कुचल दिया। 1.5 करोड़ से जायद पाकिस्तानियों को गुर्बत की अंधी खाई में धकेला। मजीद कहा कि उसके भाई ने महंगे ईंधन के मंसूबों में पाकिस्तान को जकड़ा। उसने बिजली के बिल्स को फांसी का फंदा बनाकर अवाम को लटका दिया। हर शहरी को इलाज के लिए दिया गया 10 लाख मालियत का सेहत कार्ड छीन लिया गया और अब भी खुफिया डील्स और मंसूबों के जरिए अपने इक़्तिदार की कुर्सी बचाना चाहता है। साजिशों के बजाय इंतखाब का मैदान फराहम किया जाए और ये मामला कौम के सुपुर्द कर दिया जाए। मुल्क में महंगाई का ग्राफ मजीद ऊपर चला गया है। एक हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, टमाटर, अंडे, दूध और दही समेत 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई की मजमूई शरह बढ़कर 37.7% पर पहुंच गई है। कब कम होगी महंगाई, शहरियों की दुहाई, आए रोज नया झटका। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.11% का इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 37.07% रिकॉर्ड की गई। वफाकी अदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में एक हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, टमाटर, अंडे और दूध समेत 19 अशियाए ज़रूरिया के दाम बढ़ गए। अदारा शुमारियात के अदादो शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 1 रुपए फी किलो और टमाटर की फी किलो कीमत में 11 रुपए का इजाफा हुआ। रवां हफ्ते एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 98 रुपए महंगा हुआ और एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,232 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई के सताए शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने बिजली और गैस के बिलों में तो रिलीफ नहीं दिया और अब 2 वक्त की रोटी खाने का हक भी छीन लिया है। गरीब तबका ये सारा ये मर रहा है। पेट्रोल कहाँ पहुँचा हुआ, 324 फ्यूल पहुँच गया, तो वाम जरी मर गई है। जो मजदूर बंदा है उसके लिए तो बहुत नामुमकिन है कि ये गुजर बसर करे उसमें। तो 25-30 हज़ार में मुझे बताएं अब वो आटा पूरा करे या पेट्रोल पूरा करे। रोज महंगाई करते हैं, कभी तेल में, कभी बिजली में, कभी गैस में। आवाम को सीधा मार दें तो अच्छा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान प्याज, अंडे, लहसुन, आलू, जलाने की लकड़ी, ताज़ा दूध, दही, मटन और खुश्क दूध के दाम बढ़ गए। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत, चिकन, दाल मसूर, दाल चना की कीमतों में कमी आई और एक हफ्ते के दौरान दाल माश, आटा, सरसों का तेल और घी भी सस्ता हुआ। और कई इलेक्ट्रिक सार्फिन को एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी है। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा कब से ये इजाफा नाफिजुल अमल होगा? आज ही नेपरा ने फैसला किया था और आज वफाकी हुकूमत ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका जो वसूलियां हैं वो अक्टूबर से नवंबर 2023 में होंगी और 2 माह में सार्फिन से 1 रुपए 49 पैसे फी यूनिट से लेकर 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक बिजली की इजाफी वसूलियां की जाएंगी और इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नेपरा ने चंद दिन में फैसला किया था, आज इसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया। जी, आज नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। मियां शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका।